Assalamu alaikum and hello. I hope all of you are doing well. Previously, we have learned about the origin of solar system, that how our solar system came into existence. Then we had also a discussion about the process in which our solar system came into being. Now in this session we are going to talk about solar system, information about sun, planets, dwarf planets, asteroids, meteoroids and comets. So that's all today's session that we will be going to discuss, and I hope that everything is alright. So let's start from the first part, that is sun. So sun, as you know, generally if we talk about the types of stars, because sun is the stars, right? So in this regard there are around 8 types of star, namely O, B, and then we have A type, and then we have F type, and then we have G type, then comes K and N. Okay, so these are generally named as such, but we don't know the exact thing because these are abbreviation and we have no concern about further, because that is more in detail. We are just want to learn things in general. Now as we are concerned about our sun, so sun, there are in G type, they have further G1 type, and then we have G2 type. So our sun lies are a type of G2 स्टार. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. हमारा जो सन है ना, या जो सन की कैटेगरी है वो G2 टाइप के हैं. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर हम इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस की बात करें, brightness as well as size, so on average day क्या है, ये तकरीबन 95% जो स्टार्स है ना, दे आर स्मॉलर देन सन है. इसका मतलब ये हो गया कि बाकी जो 95% स्टार्स है वो हमारे सन के मुकाबले में बच्चे हैं. ठीक है, अच्छा. Those who are listening to me, they can participate in the comment box. ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते होंगे शायद. ठीक है, तो एक्टिव रहो. Going further in elaborating the sun internally as well as externally, so we have what we have, generally we say that it is a yellow dark कैटेगरी में ही आती है. येलो डार्क स्टार है, right? And another property of the sun is it is self sustaining body है. Because of what? Because of nuclear fusion that we are going to talk about in a while, right? या हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग सेंटर है.
It is a self-sustaining center of what? Up or solar system. Solar system, the center which I'm talking about the sun. ठीक है? So the center which holds more than 99% mass of the solar system. ठीक है, या बाद में आते हैं, यहाँ तक ठीक है ना? Thank you, Rihanna, for your participation. Okay, what next? We can further say that the size, अगर हम size की बात करें relative to our Earth, because we are more concerned about our Earth, so it is around 330,000 times of Earth. ये बात याद रखो, ये तकरीबन 3,30,000 टाइम्स जो है अर्थ के मुकाबले में बड़ा है, टाइम्स ऑफ अर्थ है. ठीक हो गया. जनरली वी कंसिडर आल्सो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वी टेक इट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर. ठीक है, बाकी और भी यूनिट है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है, एंड पर्सिक है. दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन टुमारोज क्लास. ओके, लेकिन हम यहाँ जो है ना जनरली किलोमीटर में लेंगे, तो दैट इज़ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर. ये जो है ना सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है. मोर अबाउट इट डायमीटर. सो diameter of the sun, that is roughly 8,700 किलोमीटर है. डायमीटर जानते हैं आप ना. the distance between from one corner to the other corner, या आप circumference के हिसाब से भी ले सकते हैं सर्कल की. ठीक हो गया. डेंसिटी of the sun is 1.41 gram per square kilometer, and mass of the sun is about 1.98 times 10 to the 30 kg किलोग्राम. मतलब अगर आप यहाँ से 198 देन 0.00000 तक जाओगे तो इतना मास बनता है इसका, simply. Okay, if we explore more about the sun, so there are many things. For example, its revolution period around the center of galaxy. By the center of galaxy I mean or galaxy, the Milky Way. So it takes around 250 million kilometer, the time period or the time that the sun takes to take a trip, one trip around the center of Milky Way with speed. कितनी स्पीड में? ये तकरीबन 220 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये स्पीड में जो है ना ये रिवॉल्व करती अराउंड द मिल्की वे, दैट टेक्स रफली 250 मिलियन किलोमीटर. ठीक है. मोर अबाउट कैन बी दैट the light of sun reaches earth around in 8 minutes and 20 seconds. ये तकरीबन 8.5 मिनट लेते हैं. ठीक है.
नाउ कमिंग फर्दर कंपोजिशनल अगर हम बात करें, कंपोजिशन की अगर हम बात करें, ठीक है, सो compositionally in terms of 100%, 90% is occupied by hydrogen gas and helium gas. And if we go further specifically, so hydrogen contributes roughly 74% in composition, while helium around 24%, and they together make around 98%. ये बन जाती है. The rest 2% of the composition of Sun constitutes what? Heavy metals. Heavy metals such as iron, हम इसी सिंपल चीज़ को डिनोट करते हैं. आयरन, जिंक, कैडमियम, मैंगनीज एंड सो ऑन. ठीक है, you can just simply say 20% of heavy metals. No need to go further in detail. यहाँ तक ठीक है. Okay. There are generally two zones of the sun. जोन के तकरीबन दो क्या है जोन है. एक को हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं so that we get space. ठीक है. We have two zones of sun. One is internal and the other is external. First, let's learn about internal structure of the or zone of the sun. So internally it is, one of them is core, and core can be exterior or interior, and the function of the core, or you can simply say the area or the region of the core is what? The function of the core is where nuclear reaction occur, जो आगे जाके जो है ना आपके सन को एनर्जी देते हैं. And in this region the temperature reaches around 15 million degrees centigrade तक पहुंच जाते हैं because of this nuclear fusion, nuclear reaction. Another zone of internal, there is radiative zone, and then we have convection zone or convective zone. The function of radiative zone to radiate or transfer heat energy or energy in the form of what? Photons, light. in generally ये लाइट है. ठीक है.
to radiative materials, जो इसी जोन में जो रेडिएटिव मटेरियल्स होते हैं उसी के थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफर करके कहा इसी जोन को कन्वेक्शन जोन तक. And then the function of convection zone is to transport its energy which came from radiative zone to this material to transport it to via or through thermal convection. यहाँ पर जो है thermal convection के वजह से एनर्जी जो है ना बाहर जो एक्सटीरियर है या सरफेस है या जोन है जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करते हैं वहाँ तक एनर्जी सप्लाई करते हैं. And I hope you are getting the idea. Thank you. So nice of you. Okay. Next thing about zones, that is external. So externally we have one is lower atmosphere, which is also known as chromosphere. The deepest part of the external zone. Next comes upper atmosphere. मैं shortly लिख रहा हूँ, which is also known as corona. And the third part of the external zone, that is photosphere, which is also known as surface of the earth, the visible part of the sun surface. जो हम देखते हैं इसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, उसके नीचे कोरोना है और फिर जो है ना क्रोमोस्फीयर है जिसको लोअर एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है. दैट्स ऑल अबाउट सन. ठीक है. एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सोलर सिस्टम. लार्जली कुछ समझ में आता है या नहीं? I hope so. Yes, exterior zone is radiation zone. Exterior नहीं, interior है, also known as convection zone. ये radiation zone की आप बात कर रहे हैं, ये internal zone है. Exteriorly we have हमारे पास क्या है, या ये एक्सटर्नली क्रोमोस्फीयर है, अपर एटमॉस्फेयर है, एंड देन वी हैव फोटोस्फीयर. और बाकी इंटरनली वी हैव कोर, जो मतलब जो बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट है सन की एट लार्ज, एंड देन रेडिएशन जोन एंड कन्वेक्शन जोन, जिसके थ्रू सरफेस तक, जो कि हम ये जनरली सरफेस ले सकते हैं. ठीक है. एनर्जी पहुंचती है. पिक्चर विजिबल है? Okay, thank you that you are getting. Now going and exploring the solar system. So सन के बाद तो यह ख़त्म हो गई. ठीक है. सन के बाद यह ख़त्म हो गई. So in our solar system, अगर हम define करें what is solar system, so it is generally the aggregate of sun, planets. ठीक है. The aggregate of sun, planets, dwarf planets, which is also known as asteroids, meteors, and comets, as well as lunar objects or moons that we are going to talk about in a while.
Okay, so the second important thing after the universe in the solar system, we have planets. So first we have 4 planets. ये जो 4 planets है इसको हम collectively कहते हैं, और इस दो की भी है ना, you might have seen that is my per understanding, my very educated mother just served us what noodles. ठीक है, सो आप इसका जो है ना इस फार्मूले का या इस जो है ना सेंटेंस का पहला लेटर ले लें और प्लेनर्स पे अप्लाई करें तो आपको सीक्वेंशियली नाम अंडरस्टैंड हो जाएंगे। जैसे कि एम से मार्स है, वी से वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो ये कितने हो गए? 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसी के थ्रू वी कैन रिमेंबर द planets in order, right? So these 4 planets are generally called inner planets, rocky planets, terrestrial planets, as well as planetesimal भी कहते हैं। ठीक है, जो कि रिलेटिव स्मॉल है। रॉकी भी है। रॉकी इस वजह से कहते हैं कि इसमें रॉक्स एज कम्पेयर टू अदर गैसियस जॉइंट्स, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा है। और इनर भी कहते हैं इन चारों को। ठीक है, इनर में तो आउटर इनर। ठीक है, एज कम्पेयर टू इनर वी हैव आउटर। इन चारों को हम आउटर भी कहते हैं। इसको नीचे लाकर देखते हैं क्या हो गया इसका। I'm trying to move it down so that for convenience। चलो देखते हैं, आई होप यू विल गेट। ठीक है, बाकी जो ये चार वो प्लैनेट्स इसको हम गैसियस जॉइंट्स भी कहते हैं और क्या कहते हैं, और आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं, एक्सटीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक इनटू वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मार्स है। यहाँ जो है ना इसने जो है ना यूनिट जो लिया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, यहाँ हम किलोमीटर के हिसाब से लेंगे, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, so first we have Mars and the distance between Earth and Sun, that is around 58 million kilometer है। ठीक है, and one of the characteristic about this Mars that it is one of the नहीं बल्कि fastest planet तस्वुर की जाती है। fastest revolutionary body क्या है? revolutionary not rotation। ठीक है, keep in mind revolutionary body in the solar system, that is Mars. As compared to revolution we have Earth's rotation। so जो Jupiter है ना ये fastest, just for the sake of comparison I am telling you, fastest rotational body
वो जुपिटर है, क्योंकि ये तकरीबन Jupiter takes around 11 point something hours of Earth hours for rotation, which give us day and night. I'm talking about Earth. ठीक है, हम इसी कंपैरिजन में लेते हैं। तो ये फास्टेस्ट रिवोल्यूशन है, और वो कितना है, वो तकरीबन 88 डेज लेते हैं जब ये सन के रिवार्ड्स एक चक्कर लगाते हैं ये मार्स। ठीक हो गया? यस, यू आर राइट, ज्यूलियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स वेनस। वेनस जो है ना, इसको हम जनरली हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट एज वेल एज मॉर्निंग स्टार इन इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइटनेस। ये इवनिंग को और मॉर्निंग को ये शाइन करते हैं, इस वजह से इसको नाम दिया गया है। सो फर्दरमोर अबाउट दिस planet, I mean Venus, the distance between the Earth and Sun, it is around 110 million किलोमीटर इसका जो है डिस्टेंस है सन और वेनस के बीच में। मिलियन किलोमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, and if we talk about revolution of the Venus, so it is around 225 days। कितना है, 225 डेज है। रिवोल्यूशन की बात करते हैं, आई एम जस्ट राइटिंग आर वी मीन रिवोल्यूशन। एंड देन इफ यू टॉक रोटेशन, ठीक है, आर ओ, सो इट इज सॉरी, इट इज नॉट डेज, इट इज ईयर्स। ठीक है, एंड इट टेक्स अराउंड 243 डेज ऑफ अर्थ। इतना लेते हैं जो एक रोटेशन के लिए या स्पिन करते हैं। राइट, नेक्स्ट कम्स अर्थ, जो कि ग्रीनिश है, ब्लूइस्ट है और डेंसिएस्ट है। ठीक है, एज वेल एज रॉकिएस्ट प्लैनेट द सोलर सिस्टम है। इट्स रोटेशन यू नो वेरी वेल, दैट इज 365 राउंड अबाउट डेज है। ठीक है, और स्पिन जो है ना, जो जिसको हम रोटेशन कहते हैं, वो 24 आवर्स है रफली। इस दोनों प्लेनेट को, अर्थ और वेनस को, हम अर्थ ट्विन्स भी कहते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्विन्स व्हेन कंपेयरिंग बोथ इन साइज। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन्स भी आते हैं, वेनस को कहते हैं, सॉरी वो दोनों को नहीं। अर्थ ट्विन क्या है, वो वेनस। ठीक, अच्छा, फिर आते हैं यहाँ में थोड़ा कंफ्यूज है, ये मरकरी है और ये मार्स है। मैंने मरकरी के डिफिनीशन मार्स को देख के करें। ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ पिक्चर की वजह से। ठीक है, लेकिन ये वाले प्रॉपर्टीज जो है ना, फास्टेस्ट एवोल्यूशनरी बॉडी, ये मरकरी के, ना कि मार्स के। ठीक है, मार्स तो फिर जो है ना साइज के हिसाब से तो रिलेटिवली स्मॉल है व्हेन कंपेयरिंग विद अर्थ एंड वेनस, बट सिक्वेंशली इट कम्स आफ्टर अर्थ। ठीक है, उसके बाद आते हैं, मतलब 4th नंबर पे आते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक ये क्लियर है ना? यस, बिल्कुल, वेनस का स्पेलिंग ठीक करो। अच्छा, हॉटेस्ट, बिल्कुल ठीक ठीक, यहाँ तक ठीक है ना? वो उसके प्रॉपर्टीज जो है ना, मरकरी में कंफ्यूज हो गया। मरकरी को हमने डिफाइन कर दी, कंसीडर कर लिया मार्स को, इसके प्रॉपर्टीज आप इससे रिलेट करिए। ठीक है, मार्स मरकरी से। अब हम मार्स के बारे में जानते हैं। मैं चूंकि अपनी जेनेजन का पिक्चर इस्तेमाल कर रहा था, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। ये तो मैंने अभी से लिया,
जो कि बदल है सिक्वेंशली, दैट्स वाई आई कंसिडर इट रॉन्गली। ठीक है, अब मार्स है तो मार्स जो है इसको रेड प्लैनेट्स भी कहते हैं, रेड प्लैनेट। इट हैज अर्थ की जो है ना एक और खासियत है, इसकी एक मून है जिसको हम लूना कहते हैं। ठीक है, और रेड प्लैनेट्स की जो है ना 2 मून्स है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स दैट इज अराउंड 288 डेज है, 228 ईयर्स, इतना डिस्टेंस है किलोमीटर के हिसाब से। ठीक हो गया। और फिर जो है ना रेड प्लैनेट जिसको हम मार्स कहते हैं, अर्थ के हिसाब से इसलिए रिजेंबल करते हैं क्योंकि इसकी स्पिन जो है ना रोटेशन ये तकरीबन 24 आवर्स है रफली। ठीक है, इस वजह से इसको रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट कम जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, which has 68 moons, right? पहले बात कर चुके कि ये इसके फास्टेस्ट रोटेशनल बॉडी है, एंड इट टेक्स अराउंड, यहाँ कंसिडर कर ले यार, ये क्या मसला है, जुपिटर ये है। ठीक हो गया, फास्टेस्ट रोटेशनल है दैट टेक्स approximately 9 Earth hours to spin or to take a trip around the sun, right? इसके अलावा फिर आते हैं सेट्रॉन है। ठीक है, और वो ये है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट, और सेट्रॉन है जिसकी 62 मून्स है। ओके, 62 है ना? यस, आई थिंक सो। इसके अलावा इसकी एक बड़ी खासियत है कि इसके रिंग्स हैं, ठीक है, जो कि गैस से बनी होती हैं। देन कम्स यूरेनियस which has roughly 27 moons. ठीक है, and if we talk about revolution of the Uranus, that is 644 years, 64 years, and per spin it takes 16 hours, 16 years. ठीक है, इसको एक और भी नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं ग्रीन प्लैनेट्स, ग्रीन प्लैनेट। Okay, and it has also rings, इसकी भी rings है, as you can visualize. Then comes Neptune, the furthest planet, right? As well as compared to fastest planet that we have learned so far, that is Mercury in terms of revolution, but here the furthest planet Neptune is the slowest revolving body, slowest revolving body। ठीक है, स्लोएस्ट है, मतलब ये सन के गिर्द जो चक्कर लगाते हैं वो बहुत स्लो है। ठीक है, so that's all about planets. Next we have non-planetary as well as non-lunar objects or things or whatever you call it, right? ठीक है ना? अच्छा, तो ये क्या है,
इसमें जो है ना नॉन प्लेनेटरी और जो नॉन लूनर ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले जो है ना हम बात करते हैं किधर है ये, आई होप इट इज़ विजिबल, एस्ट्रॉयड से, जिसको हम ड्रॉप प्लेनर्स भी कहते हैं। क्या? ड्रॉप प्लेनर्स, ठीक है। So we define it that it is the unclear neighborhood. Sometimes they come with irregular revolution, और फिर जो है इसके शेप भी कुछ इरेगुलर है, जो कि स्पेरिकल बिल्कुल नहीं है, प्लेनेट जैसे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? डॉप प्लेनेट्स कहते हैं, जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है ना प्लेनेट्स के रखते हैं, इस वजह से ड्रॉप हैं। सो दे आर, एज यू कैन सी, रेयर रॉकी बॉडी स्मॉलर देन प्लेनेट दैट ऑर्बिट द सन। तो ऑर्बिटिंग और फिर जो है ना शेप में भी कुछ रिजेंबल्स करते हैं प्लेनेट्स के साथ, इस वजह से इसको डॉप प्लेनेट्स कहते हैं, ठीक है। देन कम्स मेट्रॉइड्स, इसलिए हम सीक्वेंस में जा रही है सो दैट यू अंडरस्टैंड। मेट्रॉइड जो है ना, ये जब क्या बन जाते हैं, मेट्रॉइड्स, व्हेन मेट्रॉइड्स कोलाइड विद अनदर मेट्रॉइड, ठीक है, या एक मेट्रॉइड जो है ना कॉमेट के साथ कोलाइड कर जाए, सो रिजल्टेंटली वी गेट एस्ट्रॉइड्स, जो कि साइज में जो है ना क्या होते हैं, इट कैन बी फ्रॉम 1 मीटर टू अ ग्रेन साइज, ठीक है, छोटी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। एंड जनरली दे आर लम्प्स, जैसे कि रॉक आर मेटेलिक फ्रेगमेंट। क्या है? मेटेलिक फ्रेगमेंट है, ठीक है। अपन एस्ट्रॉइड या कॉमेट, जो कि कंपोजिशनली आयरन सिलिकेट और रॉक के मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव मेटियार्स। अब ये बन गया, मैं सिक्वेंशली जा रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। देन कम्स मेटियार्स, यहाँ जो है ना तरतीब से नहीं, दिस इज फर्स्ट सीक्वेंस इसलिए ताकि इसके जो फंक्शन है या द फंक्शन विच इज रिलेटेड टू अर्थ आर अस, सो दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये मतलब मूव करते हैं या मतलब फंक्शन करते हैं, ठीक है, ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव मेटेरियल, देन कम्स मेटियर, okay. So these are what strict applied seen when meteorite heats up in the atmosphere, ठीक है, when they enter the atmosphere, ठीक है। ये चीज जब एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, ठीक है, because they move in the solar system, ठीक है। So it heats up due to air resistance, क्योंकि वह हवा होती है और फिर जो स्पीड ज़्यादा होती है एयर रेजिस्टेंस पकड़ जाती है, तो फिर क्या ये वो हो जाती हैं, बन जाती हैं, और उस हिसाब से फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम शूटिंग, ठीक है, या फॉलिंग स्टार भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, why sir Mercury is not the brightest, however it is the closest planet of the sun. मरकरी, हाँ ये तो है, इसका एक मैग्नेटिक क्या कहते हैं इसको, नाम मैं भूल गया, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्प्लिट या क्या है वो। आई विल एड्रेस योर आंसर लेटर ऑन, ठीक है, क्योंकि मैं अब जो है ना वो टर्मिनोलॉजी भूल गया हूँ विच इज़ रिलेटेड टू योर आंसर है, दैट इज एग्जैक्ट थिंग, ठीक है, बट आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज दैट। कुछ इस तरह मैग्नेटिक से रिलेटेड कुछ चीज़ था, ठीक है, ठीक है, तो आई विल आंसर इट
later on, don't worry. अच्छा, तो हम बात करिए फॉलिंग स्टार कहते हैं या शूटिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि ये जब एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो ये ही एयर रेजिस्टेंस की वजह से बर्न हो जाती है, और इस वजह से शूटिंग या फॉलिंग स्टार कहते हैं। जब मीटियर इसके साथ ये वाक़या होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो आगे जाके इसको हम मीटरॉइड कहते हैं, जो कि ये वाला सेकंड हो गया, एंड दिस बिकम्स थर्ड। तो आगे जाके जब ये चीज़ें जो है ना आपकी सरफेस पे जो है ना फॉल जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको मीटरॉइड कहते हैं। एंड दे आर जनरली द लेफ्ट ओवर पीसेस। ये क्या है, लेफ्ट ओवर पीसेस, जो छोटे साइज में मतलब वेरी करते हैं, पीसेस ऑफ क्या मेटियार्स है ना, मेटियार्स कौन जल गया ऊपर, मेटियार्स जल गया, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है, जब ये स्ट्राइक करती है नीचे हम देखते हैं तो उसको हम फिर मीटरॉइड कहते हैं। मोस्ट पीपल कंफ्यूज दीज टर्मिनोलॉजीज, आई मीन मीटरॉइड, meteors and meteorite. So you must distinguish between these among these terminologies and its definition. meteorite वो है जो मतलब सोलर सिस्टम में मुकते जब ये एंटर हो जाते थे फिर इसको हम meteorite कहते हैं. Why? Because of its behavior in the atmosphere, and then after it strike the surface, so then we call it meteorite with ITE, जो कि लेफ्ट ओवर पीसेस है, ठीक है. एंड इट इज़ बिलीव्ड कि जो मीटियर है, इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ टू बिलीव अकाज ऑफ डायनासोर्स एक्सटिंक्शन, क्योंकि ये किसी भी मतलब टाइम में जो है ये गिर गई थी अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करके, इस वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं और उसकी वजह भी ये कंसिडर की जाते हैं. Then comes there is what comet, ठीक है, ये वाला जो है ना दिया गया है, image दिया गया है. And then we have comet. So comet generally they are cosmic या dirty balls of frozen gases है, rocks है, ठीक है, रॉक से भी बनी होती है, या इसमें डस्ट भी शामिल की जाते हैं, कुछ रेफरेंस ये भी कहते हैं. और ये भी मतलब सन के नज़दीक जो है ना सन के गर्द चक्कर लगाते हैं, जिसको हम कॉमेट कहते हैं. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज अबाउट दिस कॉमेट्स दैट इट हैज़ सम स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ना इस जो है ना हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसको क्या कहते हैं, इसको कोमा कहते हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस ऑफ द या सेंटर ऑफ द कॉमेट है. फिर थोड़ा जो है ना आप बॉडी की तरफ जाते हो तो इसको हम फिर कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर है इसको हम कोमा कहते हैं. एंड देन कम्स टेल है, जो कि 2 टाइप्स है. टेल कितना है, 2 टाइप्स हैं. वन टाइप क्या है, वन टाइप जो है ना उसको हम आयन टेल कहते हैं, एंड द अदर वन इज डस्ट टेल, ठीक है, ठीक हो गया. And one thing more about this comet, that its tail, I'm talking about this tail is a whole, दोनों tail जो हम यहाँ बात कर चुके, is a whole always directed away from the sun. जब ये let's suppose this is the sun और ये comet है, तो इसके जो है ना ये इस तरह मूव करते हैं इसी सर्कल में, तो इसका जो है ना ये
टेल जो है ना डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सन है, बैकवर्ड है, मूव करते हैं। ठीक है, इस तरह ये मूव करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरफ आ गया, तो फिर भी जो है ना इसकी टेल किस डायरेक्शन में है, अवे फ्रॉम द सन है। So that's all about today's session. We have discussed so far sun, its properties, then its internal and external characteristics, and then we comes to explore solar system, planets, dwarf planets, then meteorites, comets. ठीक है, I just forget about the asteroids. Asteroids जो है ना, जिसको हम ड्रॉप प्लेनेट्स कहते हैं। ठीक है, ये वाला, दे आर लोकेटेड इन एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, एंड दे आर आल्सो नोन एज प्लेनेटॉइड्स। मे बी यू गेट इन एमसीक्यूज, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। प्लेनेटॉइड्स भी कहते हैं, ड्रॉप प्लेनेट्स भी हैं और प्लेनेटॉइड्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। क्यों नहीं, पाल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मतलब हम नहीं रहते ना। ये तो जुपिटर भी हो सकते हैं, बाकी सारी मतलब कॉमन सेंस है ना, पाल कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ हम होंगे तो फिर जो है ना हम कहेंगे ना कि ये गिर गया था या नहीं। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आज का सेशन ख़त्म हो गया। अभी वो क्या था, मैं अभी तक मैग्नेटिक स्पिल या क्या है। ओके, सी यू देन।